morning students, welcome back to SST class of 6th. Children, in our previous video, we had started a new chapter, that is chapter number 12 of history, and the name of the chapter is Literature, Art and Architecture of the Ancient Period. Okay, so in our previous video, we had completed the topic, that is the literature work of the ancient period, under which we have studied about the Puranas, Mahapuranas, Vedas, etc. Okay, now we will proceed to the further topic, that is in today's class we will study about the art and architecture during the ancient period. Okay, so children, let's get started. Okay, and everybody open page number 91. Okay, first one is metallurgy. What is metallurgy? The metal work. The metal work, जो भी मेटल से बना हुआ इमारत है या मॉन्यूमेंट है, वैसे आर्ट को हम क्या कहते हैं? द आर्ट ऑफ मेटल वर्क इज कॉल्ड एज मेटलर्जी. द आयरन पिलर ऑफ मेहरौली दिल्ली इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आयरन वर्क स्किल ऑफ एंशियंट इंडियन क्राफ्ट्समैन. तो अगर हम आयरन पिलर जो कि मेहरौली में है, विच इज इन दिल्ली, इफ यू विल सी, इट इज इन बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आयरन क्राफ्ट्समैन एक्टिविटी. इट इज 7.2 मीटर हाई एंड वेज ओवर 3 टन. और ये 7.2 मीटर ऊंचा है एंड द वेट इज 3 टन. ओके, इट वॉज मेड अबाउट 1500 years ago. द इंस्क्रिप्शन ऑन द पिलर्स मेंशन ए रूलर नेम्ड चंद्रा. और जो ये पिलर है वो 1500 साल पहले बनाया गया था और उस पर कुछ इंस्क्रिप्शन हैंड रिटन चीजें लिखी हुई हैं जो कि रूलर चंद्रा मतलब किंग चंद्रा के बारे में बताता है. This pillar is a wonder in itself because it has not rusted till date, making even modern technicians wonder about the technique used to make it. और सबसे बड़ी स्पेशलिटी इस पिलर की क्या है कि इस पिलर में अभी तक रस्ट यानी कि जंग नहीं लगा है. We know that when iron comes in contact with the air and water, it starts rusting. But this pillar doesn't rusted. And it has been more than 1500 years ago, and now today also people think that what technique they have used during this making of iron pillar, that it has not rusted yet. Okay, now we will study about the architecture. What do you mean by the architecture word? Yes, architecture means the art or the practice of designing and constructing monuments, building or houses. Okay, now we will study about the architecture. Many stupas, chaityas, जो स्तूपास होती है, स्तूप होती है. चैत्यास मीन्स वर्शिप हॉल जहाँ पूजा की जाती है. विहारास यानी कि मोनास्ट्रीज एंड टेम्पल्स वेर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड. तो ड्यूरिंग दिस पीरियड स्तूपास, चैत्यास, विहारास एंड टेम्पल्स वेर कंस्ट्रक्टेड. ओके, दीज आर ग्रेट सोर्सेस ऑफ नॉलेज अबाउट द पास्ट. और विहारास को देख के और टेम्पल्स के बारे में जान के हम बहुत सारी चीजों का पुराना नॉलेज गेन कर सकते हैं. ओके, they tell us how they were constructed, about the material used and also give a complete about the technological skill of the builders. तो ये हमें बताते हैं कि क्या मटेरियल यूज हुआ था, कब यूज हुआ था, ठीक, एंड जो कंप्लीट क्या टेक्निक उन्होंने यूज की थी ड्यूरिंग द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन. वी कैन ऑल कम टू नो अबाउट इट. The buildings often depict stories and incidents and have inscriptions of family trees through. और जो ये टेम्पल्स या बिल्डिंग्स जो बनी होती है, पुराने टाइम्स के जो टेम्पल्स होते थे, जो भी कोई उन्हें बनवाता था तो वो उनके ऊपर इंस्क्रिप्शंस उस पर कुछ लिखवा देता था जिससे कि लोग उसके बारे में पढ़ सकें, जान सकें, एंड द कमिंग फ्यूचर कैन ऑल्सो नो अबाउट दैट दिस मॉन्यूमेंट वॉज और दिस बिल्डिंग वॉज बिल्ट बाय whom, when and where. So these buildings like viharas, chaityas and temples, these are a great source of knowledge and information and are very useful to understand the life of that time people. Okay, kings and princes built most of the ancient monuments and temples. जो उस टाइम के किंग्स होते थे या प्रिंस होते थे, उन्होंने बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग्स को बनवाया, साथ ही साथ टेम्पल्स ऑल्सो. For some of these buildings, money was donated by rich merchants. और इन बिल्डिंग्स को बनाने के लिए कुछ रिच मर्चेंट्स भी क्या करते थे, मनी डोनेट करते थे. ओके,
and their guilds, craftsmen, landowners, individual donors including women. जो गिल्ड एसोसिएशन होता था, कोई इंडिविजुअली भी डोनेट करना चाहता था तो दे देते थे. नाउ डेज यू कैन सी दैट ए टेम्पल इज बिल्ट इन ए पर्टिकुलर एरिया, तो सारे लोग डोनेट देते हैं, फिर मंदिर बनता है. इन द सेम वे ओल्डन टाइम्स ऑल्सो इट वॉज द सेम प्रोसेस. ओके, Hundreds of people worked on these buildings to give them the final shape. और इस buildings को बनाने के लिए they were so magnificent that hundreds of people gave their valuable time to construct that building, temple, chaityas or stupas. Okay, their maintenance was done with the revenue collected from certain villages. और उनका जो maintenance होता था, जो revenue collect होता था villages से, उसको maintain करते थे. Okay. The temples also employed a large number of people to cook, wash and clean. और साथ ही साथ जो temples होता था उसमें कई सारे लोगों को employment, रोजगार मिलता था for washing, cleaning and cooking also, right? Now, stupas. Stupa यानी कि स्तंभ. Okay? Buddhism played a very important role in the development of architecture that consisted of viharas or monasteries, चैत्यास और प्रेयर हॉल्स एंड स्तूपास. तो बुद्धिज्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स में, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में. जो विहारास होते थे यानी कि मोनेस्ट्रीज जिसमें बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहते थे, चैत्यास यानी कि जो प्रेयर हॉल्स होते थे जहाँ लोग प्रेयर करते थे, और स्तूपास उस टाइम बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्ट हुए. ओके, द वर्ड स्तूपा मीन्स अ माउंट. तो जो वर्ड स्तूपा होता मतलब माउंट मीन्स एक खंड. Okay, there are several kind of stupas but they have certain common features. कई तरह के स्तूपास होते हैं लेकिन सबका एक common feature होता है. वो क्या होता है? These are usually dome shaped structures with relics of Buddha or Buddhist monks were kept. तो ये क्या होता है? डोम शेप्ड में होता है. ठीक है, गुंबद के आकार का होता है ये स्तूप, और इसमें बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज, बुद्धिस्ट मॉन्क्स या बुद्धिज्म से रिलेटेड जो रिलिक्स होते थे वो मेंशन होते थे. ओके, सच एज एशेस, टीथ और बोन्स. जैसे कोई बुद्धिस्ट मॉन्क मर जाता था तो उनके ऐश, राख रख दी जाती थी वहां पे, या उनका टीथ या बोन्स, कुछ भी ऐसा उनके बॉडी का पार्ट रख दिया जाता था. ओके, एंड the relics were kept in relic casket which were small box placed at the center of the stupas. और जो relics होती थी, चाहे teeth हो, चाहे bones हो, या उनकी कोई belongings चीजें हो जो वो यूज करते थे, उनको एक casket एक में करके उनके stupas के पास रख देते थे. The relic casket was covered with earth. और फिर उस casket को earth मिट्टी से cover कर देते थे. Later a layer of mud or baked bricks were added on top of them. और उसके ऊपर फिर क्या करते थे? ब्रिक से ढक देते थे. ओके, एंड देन द डोम लाइक स्ट्रक्चर वाज कवर्ड विद कार्व्ड स्टोन स्लैब्स. और उसके बाद फिर उसके ऊपर डोम शेप्ड स्ट्रक्चर बनाया जाता था. ठीक है, तो जो भी होता था, तो कोई भी जो बिलोंगिंग होती थी उसको जमीन पे रखते थे, उसके बाद उसको कवर करने के बाद उसको माउंट कर देते थे. अच्छे से कवर करने के बाद उसमें डोम शेप्ड बना के स्तूपा फाइनली बना देते थे. राइट, द पाथ अराउंड द स्तूपा इज नोन एज प्रदक्षिणा पाथ. और जो रास्ता स्तूप के पास होता था उसको प्रदक्षिणा पथ या पाथ कहते थे. दिस पाथ इज सराउंडेड बाय रेलिंग्स एंड इट्स एंट्रेंस इज टू द गेटवेज. और जो ये रास्ता था उसके चारों तरफ रेलिंग होती थी और एंट्रेंस के पास एक बड़ा सा गेटवे बना होता था. ओके, as a mark of devotion devotees walked around the stupas in a clockwise direction. और एज ए मार्क ऑफ डिवोटी, जो डिवोटी जो भक्त आते थे वो लोग क्या करते थे? स्तूपा का क्या करते थे? चारों ओर क्लॉकवाइज डायरेक्शन लगाते थे, मतलब परिक्रमा करते थे, जैसे हम मंदिर में करते हैं आफ्टर डूइंग द पूजा. ओके, the gateways and railings of the stupas depict Buddha, his travel stories from Jatakas and even ordinary people in their towns and villages. और जो गेटवे बने होते थे और जो रेलिंग्स लगी होती थी उस पे जातका की स्टोरीज इंस्क्रिप्शन के रूप में लिखी होती थी जिसे कॉमन पीपल पढ़ते थे. राइट, नाउ अमरावती इन आंध्र प्रदेश वॉज ए प्लेस वेयर ए मैग्निफिसेंट स्तूपा वंस एग्जिस्टेड. और अगर हम बात करें तो अमरावती एक प्लेस है आंध्र प्रदेश में जहाँ पहले बहुत बड़ा स्तूप हुआ करता था. स्टोन कार्विंग्स फॉर डेकोरेटिंग द स्तूपा वेर मेड अबाउट 2000 ईयर्स अगो. और उसमें 2000 साल पहले की कार्विंग, स्टोन की कार्विंग, गढ़ी लिखावट
थी। Viharas or monasteries were hollowed out of rocks. Some of these were decorated with sculptures and paintings. और जो विहारास होती थी जिसमें बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहते थे वो स्टोन को कार्व करके बनाया जाता था और उसमें बहुत सारे स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स बुद्धा के लाइफ से रिलेटेड होती थी। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज टेम्पल्स। अगर टेम्पल यानी कि मंदिर। Some of the earliest Hindu temples were also built at this time. और अगर हम बात करें तो जो बहुत पुराने पुराने मंदिर हैं हमारे इंडिया के वो इस एंशियंट पीरियड में बिल्ट किए गए थे। जैसे आइडल्स ऑफ दुर्गा, आइडल मतलब मूर्ति, दुर्गा की मूर्ति, शिव एंड विष्णु वेर वर्शिप्ड इन दीज टेम्पल्स। और इन मंदिरों में दुर्गा की मूर्ति, शंकर भगवान, विष्णु भगवान, इनकी पूजा होती थी। देन गर्भगृह वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेम्पल। और अगर हम बात करें टेम्पल की तो टेम्पल का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या होता था? गर्भगृह। ओके, इट वॉज ए रूम वेयर द इमेज ऑफ द चीफ डाइटी वॉज प्लेस्ड। ये ऐसा रूम था जहाँ पे जो मूर्ति थी, जो देवी या देवता होते थे उस मंदिर के, उनकी मूर्ति उस कमरे में रखी जाती थी। ओके, इन दिस रूम प्रीस्ट परफॉर्म द रिचुअल्स एंड डिवोटीज ऑफर्ड वर्शिप। और इस रूम में जो प्रीस्ट होते थे, पुजारी होते थे, पूजा करते थे और डिवोटीज दर्शन करते थे। ओके, अ शिखारा वॉज ऑल्सो बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ द टेम्पल टू पॉइंट आउट इट वॉज ए सेक्रेड प्लेस। और एक शिखर यानी कि ध्वज लगा होता था मंदिर के ऊपर, ये पॉइंट आउट करता था कि जो ये मंदिर है एक बहुत ही सेक्रेड मतलब होली प्लेस है, पवित्र स्थान है। ओके, देन मंडपास ऑफ द टेम्पल्स वेर कॉल्ड पीपुल असेंबल। और जो वहां पे मंडप बने होते थे जहां लोग इकट्ठे होकर आरती गा सके, पूजा अर्चना कर सके। ओके, सो चिल्ड्रन, दिस वाज अबाउट द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ द एंशिएंट पीरियड। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द पेंटिंग ऑफ द एंशिएंट पीरियड। पेंटिंग्स, द हिस्ट्री ऑफ पेंटिंग्स इन इंडिया गोज बैक इनटू द ओल्ड स्टोन एज। और अगर हम पेंटिंग की हिस्ट्री देखें तो वो ओल्ड स्टोन एज में जाती है, ओल्ड स्टोन एज से भी पुरानी है। एट भिमबेटका इन मध्य प्रदेश मेनी प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स हैव बीन फाउंड इन केव्स। और अगर भिमबेटका मध्य प्रदेश में जाएंगे तो वहां पे कई सारी पेंटिंग्स पाई गई है ओल्डन एज की, राइट। The complex at Ajanta and Ellora, which is 300 km to the northeast of Mumbai, is the most varied example of painting. तो अगर हम बात करें पेंटिंग्स की तो पेंटिंग्स के लिए अजंता एंड एलोरा केव्स बहुत ही ज्यादा फेमस है, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है, 300 किलोमीटर दूर उससे। ओके, देयर आर 29 केव्स इन अजंता एंड 34 इन एलोरा। तो अगर हम देखेंगे तो 29 केव्स अजंता में है और 34 केव्स आपके एलोरा में है। ओके, These caves were hollowed out of the hills over centuries. और ये जो caves थी stones को काट काट के कई सालों तक बनाया गया है। It is believed that most of the paintings were through the light of the torches at the caves were darkened. और आप ऐसा मानना है कि आप जब पेंटिंग देखेंगे तो आप जब आप लाइट उस पर स्प्लिट करेंगे टॉर्च की लाइट, then only it can be seen. Okay? These paintings called murals depicts even the life of the Buddha. और जितनी भी पेंटिंग्स अजंता और एलोरा में बनी हुई है वो सारे बुद्धा के लाइफ को क्या करती है? डेपिक्ट करती है, उनकी लाइफ कैसी थी। ओके, द कलर यूज्ड इन द पेंटिंग्स वेयर मेड फ्रॉम प्लांट्स एंड मिनरल्स इन द रिजल्ट एंड दीज कलर्स आर विविड इवन आफ्टर 1500 ईयर्स। और ये जो पेंटिंग्स है वो लगभग 1500 साल पुरानी है और जो पेंटिंग में कलर यूज किए गए थे वो प्लांट से एक्सट्रैक्ट करके, मिनरल से एक्सट्रैक्ट करके बनाए गए थे, जो कि अभी भी क्या है? विविड है, अभी भी फेड नहीं हुए हैं। ओके चिल्ड्रन, सो आवर चैप्टर इज डन। वी हैड कंप्लीटेड ऑल द टॉपिक, द आर्ट वर्क, द लिटरेचर वर्क, देन द आर्ट एंड आर्किटेक्चर वर्क ऑफ द एंशिएंट पीरियड। ओके, so I hope that all of you have understood it well. Okay, now I will be giving you homework, and in the next upcoming video I will be discussing the exercises and question answer of the chapter. Okay. So today's homework is question number 1, how architecture is the great source of knowledge about the past. Question number 2, what does the word stupa mean? Question number 3 is what is Pradakshina path? And question number 4,
why Garbhagriha was the most important part of a temple. And question number 5 is, what are murals? Okay children, so these 5 question answers you have to note down in your homework copy and go through the chapter, underline the important points and learn and write all the key terms of the chapter. Okay, in my upcoming video I will be discussing the exercises and questions answer of the chapter. Okay, so that's all for today. Take care of yourself students. Thank you.